what is momentum? Momentum basically the quantity of motion of any object, and quantity of motion. So we can say how it is defined. It is defined as the quantity of motion possessed by a body Object. or Or object. a body. We can consider that it is defined as the quantity of motion possessed by a body, and that is called momentum. And mathematically, if we want to calculate the quantity of motion, so basically when a body moves, then what are the quantities which a body have? Yes, sir. When a body moves, what are the different quantities a body have at that time? Speed. The magnitude and direction. First one, the mass of that body, yes or no? And second one, Yes, sir. the speed The of a speed. body in a direction, yes or no? So Yes. momentum is the product of mass of body and the velocity Velocity of body. or we can say speed of a body in a direction. Speed of a body in a direction. Product is the momentum is the product of mass of the body and the velocity of that body. So basically, what we can say, if the mass of body is m and velocity is v, then momentum will be M into V. momentum which is represented by P. P will be, The small. कैसे होगा बेटा? P vector is equal to हम लिख सकते हैं क्या? M and velocity is also vector. MV. So we can say the momentum is equal to mass into velocity. Yes or no, beta? Next, tell me, momentum is a vector quantity or scalar quantity? Sir, vector quantity. Vector quantity, Vector sir, quantity. because Vector quantity. since Yes or velocity no? is a vector quantity, Velocity, so momentum will also be a vector quantity. Vector quantity. Very good. So we can say that it is a vector quantity. Okay, and it is represented by P. Small P. 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 Small p. Vector. Okay, it is represented by P vector. Okay, now next, what we have, if we have a physical quantity, then there should be a unit of that quantity. Yes or no? Yes, sir. Yes. Then SI unit of momentum. SI unit of momentum. SI unit of momentum. kg meter per second. kg into meter per second. Unit of mass is kilogram, and unit of velocity is meter per Meter per second.
second. per second. And CGS unit of momentum, Gram centimeter per second. Gram into centimeter per second. Gram into centimeter per second. gram into centimeter per second. Yes or no? Clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now we start the Newton's second law of motion. Okay. Let's start the second. So can you show the upper one? Okay. Okay. Note it down first. Okay. Okay. Next हम start करते हैं बेटा Newton's second law of motion. Okay. Next one is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. And what it says that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on a body when it is moving. Yes or no? According to this law, चलिए बेटा इसको लिखिए साथ में. According to this law, according to this law, according to this law, the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied on a body. Yes or no बेटा? सिंपल हम बोल सकते हैं बेटा that rate of change of momentum is directly applied proportional to the force yes or no. And here rate means the change in momentum with respect to time. Yes or no बेटा? हम लोगों ने पढ़ा है ना कि रेट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम चेंज करते हैं देन उस क्वांटिटी में जो चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड द रेट. यस और नो? तो यहाँ पर जो चेंज होगा बेटा वो किसमें होगा? मोमेंटम में हमारे पास में चेंज होगा. ओके. नाउ इसको हम मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं बेटा? ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? कंसीडर a body is a body of mass m is moving with initial velocity u meter per second. Yes or no? And after applying a force have its velocity
its velocity changes to v meter per second in time t. यस और नो बेटा, समझ आया कि नहीं आया? कि सपोज हमारे पास में क्या है बेटा, एक बॉडी है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा उसकी, u मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है, एंड आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज कैपिटल F, then after applying that force its velocity changes to v meter per second in time t. Then मुझे बताओ बेटा, what is the initial momentum of that body? Then initial momentum of that body, MU. very good, initial momentum of body, which is MU. p1, yes or no, that is equal to m u, yes or no beta? Then next, next final momentum of body, MV. P2 MV. body, that will be equal to MV. p2, then we can say that is mv, yes or no beta? Then अब मुझे बताओ बेटा, change in momentum क्या होगा? Change in momentum, MV minus MU. MV minus MU. MV minus change in change in momentum, MV minus MU. change in momentum is represented by डेल्टा पी, यस और नो? ये देखो ट्रायंगल का जो सिंबल है ना बेटा, इसको बोला जाता है डेल्टा, और इन P2 शॉर्ट हम minus बोलते हैं P1 is delta P. यस, P2 minus P1 is डेल्टा delta पी, P. विच इज इक्वल टू हमारे पास होगा बेटा P2 माइनस P1, यस और नो? दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू, वी कैन से mv माइनस mu, यस और नो बेटा? Yes. यस और नो? बेटा मैं आप लोगों को लिखने के लिए टाइम दूंगा, ओके? फर्स्ट आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लीजिए, देन उसके बाद में नोट डाउन कीजिएगा, ओके? Yes. भवन बेटा आप साथ के साथ में लिख रहे हो तो आई थिंक आप फिर बाद में जैसा कहीं पर डाउट होगा ना स्टेप में, तो आप नहीं समझ पाओगे, ओके? तो फर्स्ट आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, देन उसके बाद में नोट डाउन कीजिएगा. आई विल गिव यू द टाइम फॉर नोट डाउन द टाइम नोट्स, ओके? यस और नो? Yes, नाउ sir. so what will be the rate of change of momentum beta? So Rate of MV minus MU upon T. rate of change of momentum will be equal to delta p upon t, yes or no beta? Because time is we have taken t, yes or no? So rate of change of momentum is del p upon del t, yes or no? So we can say that is equal to mv minus mu upon t. Sir, we can take Yes, sir. M as common. M into V Not minus now. P by T. Not now. Okay, we will take it later. Okay. Now, according to the second law of motion, what we have? According to Newton's second law of motion, what we have? Rate of change of momentum is directly proportional to F. Proportional to. Yes or no? So Yes. we can Yes. say that F is proportional to rate of change of momentum. Force. Yes or no, beta? Yes. Yes, sir. Yes. We can write it here. Yes or no? When we remove the proportionality sign, then we always use a constant. Yes or no? And here F is equal to K mv minus mu upon t. Yes or no, beta? Yes, sir. Yes.
and here k is equal to 1. Yes or no? Here k is equal to 1. Now we can write that f is equal to m b minus mu upon t. Yes or no बेटा? सर Yes, इसमें sir. के मतलब क्या? बेटा k हमारे पास में क्या एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस आप जहां पर भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे बेटा वहां पर हम यूज करेंगे डायरेक्टली f इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ओके, द वैल्यू ऑफ k इज 1. ओके. Okay, now we can take m as common. Yes or no? So Yes, equal sir. to v minus u upon t. Yes or no beta? Yes, sir. And Yes, sir. we have already studied that v minus u upon t is equal to a is Acceleration. known as the acceleration. Yes, sir. Yes or no beta? So f Acceleration. is equal to ma. Now we can say that f is equal to ma. MA. Yes or no beta? Yes, sir. Yes. Now there is a confusion that आपको कई बार ये बताया जाता है कि what is Newton's second law of motion. तो हम बोल देते हैं कि F is equal to ma जो होता है बेटा वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है. Yes or no? Is it correct or not? Yes or no? F is equal to ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है या नहीं? Yes or no? No, sir. F is proportional to mv minus mu upon t. That is the Newton's second law of motion. Very good. F is directly proportional to the rate of change of momentum. Yes, and F is equal to ma is a result for a case, a special case where k is equal to 1. Yes or no? हमने k क्या बेटा किया बेटा कांस्टेंट हमने अज्यूम किया है, then the value of k is 1. then हमारे पास में आता है बेटा क्या f is equal to ma. और अगर f is equal to k is equal to 1 आप अज्यूम नहीं करते हो तो आप इसको क्या लिखोगे बेटा f is equal to kma. Yes or no? Okay. हाँ या ना बेटा, समझ में आया बेटा? k is equal to Yes, sir. 1 हमारे पास होगा. Yes or no? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, देन उसके बाद हम आगे मूव करते हैं. Okay, next what we have that the unit of force is unit of force. अब देखिए बेटा यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास में क्या होगी, वेरियस यूनिट्स हमारे पास होगी. तो वन बाय वन हम बात करते हैं. फर्स्ट बताइए मुझे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या होगी, बताओ. ऐसा यूनिट ऑफ Newton. force is Newton. Yes or no? Because by using the second law of motion, we can define, we are able to explain the force. Yes or no? F is equal to ma. By using the Newton's second law of motion, we can explain the force. Yes or no? And here Newton is equivalent to kilogram Sir. meter per second square. Yes or no? Yes, sir. Okay, by using the formula here, the unit of mass is kg and unit of acceleration is meter per second square. Then again CGS unit of force is Sir, dyne. CGS unit of force is dyne, and we can write it, the unit of force in CGS system is gram Centimeter per second square. gram सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस और नो बेटा? ये मैम ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट सिस्टम ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना? Yes, sir. यस सर ना? Yes, ये बेटा sir. वो मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले पढ़ाया था कि जब हमारे पास में जब यूनिट सिस्टम हम यूज करेंगे बेटा तो ऐसा यूनिट सिस्टम एंड सीजीएस यूनिट सिस्टम यूज करेंगे हम. ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास में देखो बेटा
नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा रिलेशन बिटवीन, क्या होगा, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। डाइन बता सकते हो बेटा? Yes, sir. Suppose if we have to equal, then Newton is equivalent to dyne. Yes or no बेटा? यहाँ पर आप लेंगे बेटा Yes. कितना, 1 न्यूटन। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? तो इसको देखो बेटा, यहाँ से देख सकते हैं कि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes or no? Here we can write down kg meter per second square. Kg means to say kilogram, and here we can write down gram per centimeter, gram centimeter per second square. Now how much gram in 1 kilogram? 2000. 1000. 1000. Yes or no? Yes, sir. Yes. 1000 gram. And how much centimeter in 1 meter? 100. 100. 100. 100 centimeter. Then divided by second, then second is 1 second is equal to 1 second. Yes or no beta? Yes, sir. Now we can Yes, sir. say 1 Newton is equal to here 10 raised to power 3 multiplied by 10 raised to power 2, and here gram per centimeter per second square, which is equivalent to dyne. Now we can say 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne. 10 raised to 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. It is the most important relation between the Newton and dyne. Yes or no beta? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फर्स्ट। ओके बेटा, समझ में आया दोनों का रिलेशन? है ना? You can write down here 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. Okay. 10 raised to 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne. If I ask that 1 dyne is equal to 1 dyne is equal to, then what will be 10 raised to power 5 minus 5 Newton? Yes or no बेटा? समझ में आया? Yes, sir. है ना? समझ में आया बेटा? देखो 10 raised to power 5 को अगर हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में हम लेकर जाएंगे, देन पावर को जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, तो जो हमारे पास में पावर्स होती है वो उसका साइन क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना हमने? यस बेटा? Yes, sir. Got it. गॉट इट? हमारे पास है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे? अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। यूनिट्स हमारे पास में क्या होगा कि देखो, फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो हमारे पास क्या होगी बेटा? केजीएफ, और इसे बोला जाता है बेटा किलोग्राम फोर्स एंड सर किलोग्राम। वो वाला KGF तो नहीं है ना सर? हाँ बेटा, सर वो वाला KGF तो नहीं ना? नहीं बेटा, ये वो नहीं है। ओके ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? चलो बेटा, केजीएफ का मतलब यहाँ पर बेटा क्या होगा? किलोग्राम फोर्स हम इसको बोल सकते हैं।
है ना। किलोग्राम फोर्स के अलावा इसको हम और ये भी बोल सकते हैं बेटा, किलोग्राम वेट पे हम बोल सकते हैं इसको, क्या इज ऑल्सो कॉल्ड किलोग्राम वेट एम, ठीक है। बट अगर केजीएफ के अकॉर्डिंग देखें बेटा तो किलोग्राम फोर्स इसका प्रोनाउंसिएशन हमारे पास होगा, ओके। देन यहाँ पर क्या होगा बेटा, 1 kgf इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होगा, द फोर्स ऑन अ मास ऑफ 1 kg by the earth towards its center, okay beta, and the earth attracts every object towards its center, and here the force on a mass of 1 kg by the earth towards its center is called the kilogram force. So basically we can say 1 kgf is equal to 1 kilogram weight, 1 kilogram weight which is equal to, बताओ बेटा मुझे 1 किलोग्राम का अगर मास हमारे पास होगा तो अर्थ उसको कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, which is equivalent to its weight, and weight of the 1 kg is equal to mass into acceleration बेटा, Yes, sir. मास into acceleration, और acceleration कौन सा होगा बेटा, ड्यू टू Gravity. gravity, acceleration due to gravity. So basically we can say 1 kgf is equal to beta, mass is 1 kg multiplied by acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Yes or no beta? Yes, sir. Yes, sir. Now we can say 1 kgf is equal to 9.8 kilogram meter per second square. Yes, then 1 kgf is equal to 9.8 Newton. Yes or no beta? Understood beta? Yes, sir. Yes, Yes, sir. and same as kilogram force, we can also define the gram force. Yes or no? Gram force, which is equal to the बताओ क्या होगा बेटा, the force on a mass of 1 1 gram 1 gram by the earth towards its center. Yes or no beta? Yes. Yes. sir. Yes. Now what we can say, 1 gram force is equivalent to 1 gram weight. Yes or no beta? And which is equivalent to mass into acceleration due to gravity. Yes or no beta? Yes, now we can say 1 gram force is equivalent, mass is 1 gram. Yes or no beta? 1 gram, and Yes, sir. acceleration due to gravity कितना होगा बताओ मुझे बेटा? 980 centimeter per second square. Yes or no? Yes, sir. Yes. Now we can say 1 gram force is equal to 980 gram
centimeter per second square, and gram per centimeter per second square is equivalent to Diane. One Diane. Then 980. 980 yes or no बेटा? सर हाँ बेटा बोलिए। जैसे हम न्यूटन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो सर डायन का कुछ नहीं है। नहीं बेटा, न्यूटन को डाइन को बेटा डाइन शॉर्ट फॉर्म में ही है डाइन। डाइन को हम डाइन ही लिखेंगे उसमें। ओके यस सर। ओके एंड इन जो यूनिट्स है बेटा इनको क्या बोला जाता है बेटा? द अबव यूनिट्स आर कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ओके बेटा, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। ओके बेटा, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप। ओके बेटा, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके बेस हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके तो फर्स्ट सर वो न्यूमेरिकल बाकी था पूरा। थोड़ा बाकी बेटा, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास जो है। ठीक है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन लिखे बेटा, अ बॉल ऑफ मास 200 gram is moving with a velocity of, बेटा ये किसी का माइक ऑन है तो आप ऑफ कर लीजिए इसको, है ना? सॉरी सर सॉरी। is moving with a velocity of 5 meter per second, then calculate the momentum associated with ball. ओके बेटा, डन बेटा? ओके Yes, sir. चलिए बेटा, ओके फर्स्ट क्वेश्चन पे नोट Yes, करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेज अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मोमेंटम एसोसिएटेड विद द बॉल। ओके तो चलिए मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूं बेटा। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमारे पास में जो ऑप्शन होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास में क्या होगा, पहले तो 1000 ग्राम, सिंपल है, मैं से उसको 1000, चलिए मोमेंटम यूनिट में आपको बताता हूँ बाद में। 1000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 500, ऑप्शन सी आपके पास में हो जाएगा बेटा 1, ऑप्शन बी आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन बी की हम बात कर लेते हैं 2। टेल मी द सर आंसर। आंसर होगा 1 सर 1। यस 1। आंसर होगा 1 बेटा। यस सर। एवरीवन गॉट द आंसर? यस सर। यस बेटा, ओके चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा कैसे होगा। देखो सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिखना है, क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग दैट एवरी फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव द एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। ओके, तो फर्स्ट वन वी हैव टू चेक दैट द एवरी क्वांटिटी हैज एसआई यूनिट और नॉट। तो फर्स्ट वन इज mass is equal to 200 gram and gram is the CGS unit of mass. Yes or no? Yes sir. So Yes, first sir. Yes. change it into SI unit, which is equal to 200 divided by 1000. Then it is equivalent to mass is equal to कितना होगा बताओ, 0.2 0.2 kg.
kg. 2 Okay. kg. Then velocity of the ball The 0.2 into 5 5 meter per second. 5 meter per second. Then देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, momentum is given by Momentum is equals to mv, sorry, mv. momentum is is equal to equal to mass into velocity. mass into velocity. Okay बेटा, mass into velocity, then m into v, which is equivalent 0.2 multiplied by 5. Then we will get p is equal to 1 कितना होगा बेटा, 1 kg meter per किलोग्राम second. मीटर पर सेकेंड. यस और नो बेटा? Yes, sir. यस. ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन. Question number second. What it says, a body of mass 20 kg moves with an acceleration of 2 meter per second square. Then calculate the rate of change of momentum. ओके बेटा, चलिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. एक बार समझ लेते हैं बेटा. ओके, देखो बेटा, हमारे पास क्या होगा बेटा, जो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बेटा, वो क्या होती है बताओ मुझे एक बार. श्रीनिधि क्या होती है बेटा? श्रीनिधि, चलिए बेटा, देखो यहाँ पर देख लेते हैं. देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा बेटा, वो हमारे पास में, अगर हम बात करें ऐसा यूनिट सिस्टम में, तो ऐसा यूनिट सिस्टम में तो वो कितना होता है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, देन यहाँ पर अगर हम ग्राम फोर्स में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे बेटा, क्योंकि ग्राम हमारे पास में कौन सा यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट है. ठीक है, तो सीजीएस यूनिट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करेंगे, है ना. तो सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास होता है बेटा, देखो एक्सेलरेशन हमारे पास जी होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बेटा, है ना. जब हम इसको क्या करेंगे, सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, तो जी इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, देखो बेटा 9.8 हमारे पास एज इट इज है. देन मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है, देखो, है ना. और सेकंड हमारे पास में एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ से हमें द वैल्यू ऑफ जी इज मिलती है बेटा कितनी, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, ग्राम फोर्स में जी की वैल्यू यूज की हमने 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन जब हम ग्राम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्विवेलेंट होगा हमारे पास में 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू हो गया बेटा 989. कई जगह पे आपको क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में बेटा 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू हिंट में दिया होता है कि 981 डाइन होता है. तो 981 और 980 में बेटा ज्यादा डिफरेंस नहीं है. वी कैन कंसीडर इट 980 डाइन. यस और नो बेटा? ओके बेटा, ओके, चलिए क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा. देखो क्वेश्चन में हमारे पास में क्या था, क्वेश्चन बेटा सबसे हो गया ये क्वेश्चन. यस सर. यस, Yes, तो देखो sir. इसको एक बार सॉल्यूशन में फटाफट लिख देता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना. देखो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, सिंपल मास कितना है बेटा,
20 kg एंड एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है बताओ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड हमसे क्या पूछा है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज इक्वलेंट टू डेल्टा पी, ये हमें बता फाइंड आउट करना है। ओके, देन हमें पता है बेटा कि फोर्स इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू second law of motion force is equal to किसके होता है बताओ, rate of change of momentum. Okay, now we can say force is equal to, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर डेल्टा पी अपॉन टी हो जाएगा, which is equivalent to mass into acceleration। यस बेटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू, हमारे पास पी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मास कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर चलो 20 kg मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन यहाँ पर सिंपल हम बोल सकते हैं बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is equal to 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, 40 न्यूटन। 40। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बेटा। डन सर। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Sir, not done. चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके वो है, चलिए लिखिए इसको बेटा, a body of mass 10 kg undergoes a change in speed from 20 meter per second to 0.2 meter per second. Calculate the momentum. चलिए बेटा इसको कीजिए कंप्लीट। Calculate the momentum. देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे बोला गया है, a body of mass 10 kg undergoes a change in speed from 20 meter per second to 0.2 meter per second. Calculate the momentum. बेसिकली यहाँ पर मोमेंटम कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या है बेटा, कि देखो इनिशियल स्पीड कितना है बेटा उसका 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल स्पीड क्या है बेटा 0.2 मीटर पर सेकेंड। सो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। यस, कि इनिशियल मोमेंटम उसका कितना होगा एंड फाइनल मोमेंटम कितना होगा, देन हमें वहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना होगा। बिकॉज यहाँ पर दो मोमेंटम होंगे, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा mu एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा mv। तो यहाँ पर मोमेंटम क्या करना है बेटा, हमको कैलकुलेट द मोमेंटम। सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन मोमेंटम इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, ये आपको बताना है ना, इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो फर्स्ट आप मुझे ये बताओ बेटा कि मोमेंटम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। Decrease. इंक्रीज होगा बेटा,
सर डिक्रीज 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 होगा। चलिए बताइए मुझे कितना डिक्रीज होगा बेटा? चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमारे पास में बेटा वो देख लेते हैं। इनिशियल हमारे पास में क्या है, उसका मास कितना गिवन है बेटा? m है ना। मास को ब्रैकेट में आप m से रिप्रेजेंट कर सकते हो। m इज इक्वल टू 10 kg। ओके, देन इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज u is 20 given meter per second. 20 meter per second. Okay, and final velocity which is v is given 0.2 meter per second. Then initial momentum क्या होगा बताओ बेटा मुझे? Initial momentum 20 into 10. initial momentum we can consider p1 which is m into u. So p initial pi है मैं वैसे तो initial का ना pi consider कर लो। okay, pi is 200. equal to 10 multiplied by 20 which is equivalent to 200 kilogram meter per second square. Yes or no? And final momentum क्या होगा बेटा? And final momentum क्या होगा बताओ? P final which is equivalent to mv. Then P final will be 10 multiplied by सर तो आपकी वहाँ पे स्क्रीन 200 पॉज हो kg गई है। मीटर पर सेकंड आएगा ना? हाँ 200 आएगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 multiplied by 0.2 then it will be equal to 2 kilogram meter per second. Yes बेटा, यस सर। सही लिखा है ना मैंने? सर सेकंड स्क्वायर नीचे गई है। सर सेकंड स्क्वायर ये सही है सर, ऊपर गलत है सर। ऊपर भी केजी मीटर सेकंड आना चाहिए ना सर, बिकॉज वही- मास इनटू वेलोसिटी है। हाँ बेटा, मैं वही चेक कर रहा था कि आप लोग सो रहे हो कि जाग रहे हो। नहीं सर। हाँ, चलिए ओके बेटा, तो यहाँ पर देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा? फाइनली चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ मुझे? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। यही होगा बेटा चेंज। इनिशियल फाइनल जो मोमेंटम होगा उसमें से इनिशियल को माइनस कर देंगे। देन वी गेट डेल्टा p इज इक्वल टू 2 minus 200. Yes, and unit is kilogram meter per second. Then delta p will be equal to 198, which is negative. Yes or no? यस सर। Yes. So here negative sign shows that the momentum of the body is decreasing or increasing? डिक्रीजिंग Decreasing. So we can say the momentum decreases by 198 kilogram meter per second. Yes बेटा? यस सर। Yes. Okay, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।